Hello and welcome to this lecture. So in last lecture we discussed about the basic fundamentals of SCR. तो ये पिछले क्लास में हम लोगों ने ये फिगर देखा था इस तरीके का, है ना। ये PN आपके जो टर्मिनल्स हैं उनसे मिलकर ये बनता है J1 J2 J3 तीन जंक्शन है और एनोड कैथोड और गेट there are three terminals and this is how we represent the thyristor. Now as I told you in the previous lecture that I will discuss uh, more about the VI characteristic of SCR or thyristor. So let us continue with the discussion. So there are three different modes in which the SCR works as we discussed in the previous lecture. They are reverse blocking mode, forward blocking mode which is known as the off state, and forward conduction mode which is known as the on state. These three modes of operation are now discussed below. So let us look at that. Reverse blocking mode. When cathode is made positive with respect to anode with switch as open. Figure 4.2a. So let us see figure 4.2a and then we will discuss about it. Sorry, 4.2a. So let us see this figure and try to understand. This is anode terminal and this is cathode terminal. Okay, so we are making cathode positive with respect to anode and switch is open. Okay, so let us look at this particular paragraph again. क्या बोल रहा है ये? कैथोड को आपको पॉजिटिव बनाना है विथ रिस्पेक्ट टू एनोड और स्विच को क्या रखना है? ओपन रखना है. तो थायरिस्टर कौन से मोड में चला जाएगा? रिवर्स बायस मोड में चला जाएगा. ठीक है. और जंक्शन जैसा कि फिगर 4.3a में शो किया गया है, जंक्शन J1 और J3 जो है वो रिवर्स बायस हो जाएंगे और J2 जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा. The device behaves as if two diodes are connected in series with reverse voltage applied across them. ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं. A small leakage current of the order of few milliamperes, बहुत ही छोटे अमाउंट का few milliampere का करंट जो है वो फ्लो होगा इस पर्टिकुलर मोड में. इसी को हम ये देखिए, ये है रिवर्स लीकेज करंट. आपको डायोड कैरेक्टरिस्टिक याद है? इसी तरीके से बनाते थे हम लोग डायोड कैरेक्टरिस्टिक रिवर्स बायस में. तो ये बिल्कुल डायोड कैरेक्टरिस्टिक है रिवर्स बायस का. और ये है वो रिवर्स सैचुरेशन करंट या रिवर्स लीकेज करंट जो कौन से ब्लॉक में, कौन से मोड में फ्लो हो रहा है? रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में फ्लो हो रहा है. और ये देखिए, ये है ब्रेक ओवर वोल्टेज, यहाँ पे देखिए, है ना. इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. तो this is reverse blocking mode called as the off state of the thyristor. If the reverse voltage is increased, then at a critical breakdown level called reverse breakdown voltage, यहाँ पे देखो, यहाँ reverse breakdown voltage है, an avalanche occurs at J1 and J3 and the reverse current increases rapidly. Avalanche breakdown जो हम लोग पढ़ते थे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, सेम avalanche breakdown. A large current associated with VBR gives rise to more losses in the SCR. This may lead to thyristors damage as the junction temperature may exceed its permissible temperature rise. It should therefore be ensured that maximum working reverse voltage across a thyristor does not exceed VBR. What is happening at VBR? As we had already seen in case of basic electronics when we studied in about the डायोड कैरेक्टरिस्टिक. तो एक पॉइंट आने के बाद वो वोल्टेज रीच हो जाता है जहां से करंट की मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलती है. यू कैन नॉट कंट्रोल द वैल्यू ऑफ द करंट. दैट वोल्टेज इज नोन एज द ब्रेकडाउन वोल्टेज. तो ये ब्रेकडाउन वोल्टेज आपके लिए कोई कहना चाहिए एडवांटेजियस नहीं है. ये क्या करता है? करंट की वैल्यू को इतना बढ़ा देता है कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते. और ये दूसरे थर्मल लॉसेस को जो है उसका रीजन बनता है, उसका कॉज बनता है. एंड इट कैन simply destroy your thyristor or destroy your diode. ठीक है. So the SCR in the reverse blocking mode may therefore be treated as an open switch. तो जब हम रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में होते हैं तो SCR कौन से मोड में हो जाता है? ओपन स्विच कंडीशन में हो जाता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर से देखिए, कैथोड को पॉजिटिव बनाया है हमने किसके रिस्पेक्ट में? एनोड के रिस्पेक्ट में. स्विच को हमने क्या किया है? ओपन किया है. तो गेट तो कनेक्टेड ही नहीं है, मतलब कोई इनपुट अप्लाइड नहीं है.
अब इस केस में जब कैथोड पॉजिटिव है इसके, ये है PN, तो ये नेगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल से, मतलब ये जंक्शन क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस्ड। अब यहाँ पे सॉरी रिवर्स बायस, रिवर्स बायस, क्योंकि हमको इन दोनों को रिवर्स बायस करना है। कैथोड जो है किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से, तो क्या हो गया ये रिवर्स बायस। और ऊपर जो नेगेटिव है वो किससे कनेक्टेड है, इस पॉजिटिव से, तो वो क्या हो गया रिवर्स बायस, मतलब J1 और J3 किस में चले गया, रिवर्स बायस में। और अपोजिट कंडीशन किसके साथ होगी, N और P के साथ, क्योंकि रिवर्स कनेक्टेड है। तो ये जो है J2 किस में चला जाएगा, फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा। बट डजेंट मैटर, क्योंकि आपने आउटसाइड की जो सर्किटरी है, मतलब आउटसाइड के जंक्शंस को आपने क्या किया हुआ है, रिवर्स बायस, तो ये कौन सा मोड रहेगा, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में। व्हेन एनोड इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड विथ गेट ओपन। अब भाई मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ये दूसरा फिगर देखिए, मैंने एनोड को पॉजिटिव कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, तो अब क्या हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया। ठीक है, मतलब ये हो गया फॉरवर्ड बायस। और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया, मतलब अगेन क्या हो गया, ये फॉरवर्ड बायस। J1 और J3 किस कंडीशन में रहेंगे, फॉरवर्ड में, बट J2 किस में चला जाएगा, रिवर्स में, जस्ट अपोजिट टू दिस कंडीशन। एंड इन बोथ द केसेस वी आर नॉट कनेक्टिंग गेट, हमने गेट को कनेक्ट नहीं किया, मतलब गेट कैसा है, ओपन सर्किट कंडीशन में है, स्विच जो है वहां से डिस्कनेक्टेड है। ठीक है, तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है, व्हेन एनोड इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू द कैथोड विथ गेट ओपन सर्किट, थायरिस्टर इज सेड टू बी फॉरवर्ड बायस्ड। और मैंने जैसे बताया J1 J3 फॉरवर्ड बायस हो जाते हैं और J2 क्या हो जाता है, रिवर्स बायस हो जाता है। इस केस में भी स्मॉल अमाउंट का करंट फ्लो होता है, जिसको हम लोग फॉरवर्ड लीकेज करंट बोलते हैं। तो दो करंट होंगे, एक रिवर्स लीकेज करंट होगा और एक फॉरवर्ड लीकेज करंट होगा। देखो दोनों में हो क्या रहा है, फिर से मैं समझाता हूं आपको। यहाँ पे J1 और J3 हो जा रहा है रिवर्स और J2 हो जा रहा है फॉरवर्ड, लेकिन क्योंकि आउटर सर्किटरी मेरा रिवर्स बायस है, तो कोई करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, है ना, रिवर्स बायस के कारण, क्योंकि सारे जो आपके जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स है वो बैटरी पोटेंशियल की तरफ आपके जो सप्लाई की तरफ जाने लगेंगे, इट विल नॉट क्रॉस द जंक्शंस। ठीक है, तो इस समय जो करंट फ्लो होगा उसको रिवर्स लीकेज करंट बोलेंगे। अब मैंने क्या कर दिया, J1 और J3 को कर दिया फॉरवर्ड बायस, बट अब यहाँ पे J2 जो है वो रिवर्स बायस हो गया। अब क्योंकि J2 रिवर्स बायस हो गया, तो जितना भी यहाँ से सप्लाई आने की कोशिश करेगी वो J2 के क्रॉस एक्यूमुलेट नहीं हो पाएगी, क्योंकि J2 रिवर्स बायस है, तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ ज्यादा होगी वहां पे। फिर भी एक स्मॉल अमाउंट का करंट फ्लो होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड लीकेज करंट। क्योंकि J1 और J3 दोनों फॉरवर्ड है, इसलिए ये फॉरवर्ड वाला लीकेज करंट है, और यहाँ पे J1 और J3 दोनों रिवर्स हैं, इसलिए ये रिवर्स वाला लीकेज करंट है। दोनों ही केस में अगर हम बात करें, चाहे हम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड की बात करें या रिवर्स ब्लॉकिंग मोड की बात करें, दोनों ही केसेस में आपका थायरिस्टर जो है वर्किंग कंडीशन में नहीं होता, उसको हम ऑफ स्टेट में ही बोलते हैं। ठीक है, इस समय पे जो वोल्टेज होता है ना, जैसे उस समय हम लोगों ने ब्रेक डाउन वोल्टेज बोला, रिवर्स ब्रेक डाउन, यहाँ पे होगा फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, होगा यहाँ पे भी ब्रेक डाउन ही, बट टर्मिनोलॉजी जो है यहाँ पे चेंज हो जाएगी। उस समय पे हम लोग बोल रहे हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ब्रेक ओवर वोल्टेज। तो फॉरवर्ड कंडीशन में ब्लॉकिंग में ब्रेक ओवर होता है, और रिवर्स ब्लॉकिंग में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। दोनों ही केसेस में एवलांच ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट मोड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तो है कंडक्शन मोड, जिसमें आपका थायरिस्टर कंडक्ट करेगा। इन दिस मोड थायरिस्टर कंडक्ट्स करंट फ्रॉम एनोड टू कैथोड विथ अ स्मॉल वोल्टेज ड्रॉप across it. A thyristor is brought from forward blocking mode to forward conduction mode by turning it on by exceeding the forward breakover voltage or by applying a gate pulse between gate and cathode. कुछ नहीं करना है, जो गेट का स्विच आपने ओपन करके रखा हुआ है उसको आपको कनेक्ट कर देना है। जैसे ही आप इतना वोल्टेज प्रोवाइड कर देते हैं जिससे उसका ब्रेक ओवर वाला वोल्टेज एक्सीड कर जाए, आपका जो इनपुट वोल्टेज है वो इतना हो जाए कि उसके ब्रेक ओवर के कंडीशन को एक्सीड कर जाए, तो थायरिस्टर क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। क्यों ऑन हो जाता है, क्योंकि उसका जो कैथोड और जो J2 है, जो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में रिवर्स हो रहा था, उसको आपने फॉरवर्ड बायस कर दिया गेट से इनपुट अप्लाई करके। जैसे ही ये होता है आपका फॉरवर्ड कंडक्शन मोड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इन दिस कंडक्शन मोड एनोड करंट इज लिमिटेड बाय लोड इम्पीडेंस अलोन, एज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस SCR इज क्वाइट स्मॉल। SCR के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है इतना ज्यादा होता नहीं है, तो अगर आपको कंट्रोल करना है कितना एनोड करंट चाहिए, तो जितनी इम्पीडेंस वैल्यू आप लगाएंगे, जितना लोड आप लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप वेरी कर सकते हैं उसकी वैल्यू को। दिस स्मॉल ड्रॉप वोल्टेज ड्रॉप VT अक्रॉस द डिवाइस इज ड्यू टू द ओहमिक ड्रॉप इन द 4 लेयर्स। हाँ बिल्कुल, इतने सारे लेयर्स हैं, उनके बीच में कहीं ना कहीं पे तो ओहमिक ड्रॉप होना ही होना है। ठीक है, तो दिस आर द रीजन। तो इस क्लास में हम लोगों ने डिटेल में समझा, सॉरी,
डिटेल में समझा कि किस तरीके से जो है आपका जो SCR है वो वर्क करता है। ठीक है, और ये आपको एग्जाम में भी पूछता है। आप ये थोड़ा सा हम इस डायग्राम को समझे तो देखो यहाँ पे ये रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है और ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है। दोनों ही केसेस में देखो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, ये रिवर्स स्टेट में हो रहा है और ये फॉरवर्ड स्टेट में हो रहा है। IG की वैल्यू 0 है, फिर ये IG1 है, फिर ये IG2 है और फिर ये IG3 है। जैसे जैसे आप गेट करंट की वैल्यू को, जैसे जैसे आप गेट वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी गेट करंट की वैल्यू भी क्या होने लगेगी, एक्सीड होने लगेगी। ठीक है, और एक जैसे ही वो स्टेब्लिश हो जाएगा, जैसे ही वो लूप कंप्लीट हो जाएगा, वैसे ही आपको एक लार्ज अमाउंट का करंट मिलेगा। इसको हम लोग बोलेंगे एनोड करंट, जो एम्पियर्स में होगा, और इस स्टेट को बोलेंगे हम लोग फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट। अब दो बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट आते हैं यहाँ पे, एक होता है लैचिंग करंट और एक होता है होल्डिंग करंट। तो होल्डिंग करंट वो मिनिमम करंट है, होल्डिंग करंट वो मिनिमम करंट है जिससे आपका जो थायरिस्टर है वो ऑन कंडीशन में, थायरिस्टर को ऑन कंडीशन में ले जाने के लिए जितना करंट आपको चाहिए वो होल्डिंग करंट है, और उसको उस स्टेट में रखने के लिए जितना करंट वैल्यू चाहिए वो क्या होता है, लैचिंग करंट होता है। ठीक है, ये हमेशा पूछा जाता है लैचिंग करंट किसको बोलते हैं और होल्डिंग करंट किसको बोलते हैं। 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं आपसे, और वाइवा के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज लैचिंग करंट एंड व्हाट इज होल्डिंग करंट। ठीक, कहीं पे अगर आप मुझे डेफिनेशन मिलती है तो वहां पे मैं आपको और इसको डिफाइन करके बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट हाउ वी कैन टर्न ऑन दी थायरिस्टर्स। तो वी विल स्टडी अबाउट द थायरिस्टर्स टर्न ऑन मेथड्स। ये 5 मेथड होते हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, किस तरीके से हम थायरिस्टर को ऑन कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से। दिस इज ऑल फॉर टुडेस लेक्चर। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।